Honorable Chancellor and Honorable Governor UP, Shrimati Anandiben Patel ji, the Chief Guest, Dr. Abhay Karandikar, Secretary, Department of Science and Technology, Government of India, and former Director, IIT Kanpur, Professor Mahen Bhandari, the CEO of the Vattikuti Foundation and Director, Robotic Surgery and Research, Vattikuti Health System, Detroit, USA, the former Vice Chancellor of the King George's Medical University, and the former Director of Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Sciences, the Pro VC, Professor Abhijit Kaur, the Dean Faculty of Medical Sciences, Professor Amita Jain, Dean Faculty of Dental Sciences, Professor R.K. Patil, Dean Faculty of Nursing, Dr. Punita Manik, and Dean of Paramedical Sciences, Dr. Anil Nishal. All former VCs in the audience, esteemed guests, Shri Parthasarthi Sen Sharma ji, the Principal Secretary, Medical Education and Medical Health, awardees of today's function, faculty members, staff, residents, and students of the King George's Medical University, the girls from the Government Girls Inter College, the Anganwadi workers, and our friends from the media. A very warm welcome to the 19th convocation of the King George's Medical University, UP Lucknow. The university has been graded A+ by the National Assessment and Accreditation Council, NAAC, of India in the second cycle of assessment. And I would like to express my deep gratitude to
the Honorable Chancellor, Srimati Anandiben Patel ji, whose continuous efforts and personal motivation to attain excellence in education has led to this. The university has been ranked 12th best amongst all the medical institutions in India by the National Institute Ranking Framework. And lately, the university has been conferred the 15th FICCI Healthcare Excellence Award 2023 in the category Excellence in Patient Service Delivery, Public Hospital. This is noteworthy since FICCI has given 13 Healthcare Excellence Awards in different categories this year, of which only 5 were given to public sector institutes, and KGMC came in one of these 5. The microbiology and pathology labs are NABL accredited. In academics, the university has taken a big leap forward with increase of 67 postgraduate NMC seats. The new courses which were started include DM in clinical hematology, DM in critical care medicine, DM in medical gastroenterology, MCH in pediatric orthopedics, MD in emergency medicine, and MDS in public health dentistry. Further, there has been an increase in the seats in MD respiratory medicine, MD pharmacology, MD forensic medicine, MD pathology, MD general surgery, and MCH surgical oncology. A 2-year diploma course for OT technicians has been initiated with an annual induct of 38 candidates. A 3-month certificate course in critical care for nurses has been started by the Department of Anesthesia. 2 new departments, the Department of Thoracic Surgery and the Department of Vascular Surgery, have been established and inaugurated by the Honorable CM. The Department of Medical Education has been upgraded by the NMC from a regional center to a nodal center. There are only 12 nodal centers in India, and hence this is a noteworthy achievement. And with this, the Department of Medical Education is now engaged in various training programs which include basic and advanced course in medical education, curriculum implementation support program, and masters in health profession education. KGMU is very proud to have 10 faculty in the top 2% global scientists by the Stanford assessment in the year 2023. Professor R.K. Garg and Professor Rajesh Verma from the Department of Neurology, Dr. Sujit Kar and Dr. Shweta Singh from the Department of Psychiatry, Dr. Shailen Saxena from the Common Research Facility, Professor Abbas Ali Mahdi from the Department of Biochemistry, Professor Rashmi Kumar, who's retired from Pediatrics, and Professor Shelly Avasthi, who's also retired from Pediatrics, late Professor Divya Mehrotra from the Department of Oral and Maxillofacial Surgery, and late Professor U.C. Chaturvedi from the Department of Microbiology. This year has witnessed 271 extramural projects in running with a total funding of rupees 23.33 crores. KGMU, in association with IIT Kanpur, is introducing the second cohort of an interdisciplinary program, the School of International Biodesign, synergizing healthcare innovations and entrepreneurship, the SIB Shine Biodesign Program, a dedicated fellowship to nurture innovation and entrepreneurship in healthcare technology. An open-air library space has been created behind the main central library building for students to enjoy fresh air as well as read together. My library on fingertips, my loft,
app which gives an access to the library anywhere, anytime, has been introduced. KGMU is striving towards establishing a sound transplant program. 10 liver transplants have been done this year, 5 kidney transplants, and recently the first allogenic hematopoietic stem cell transplant. In the field of liver transplant, it has made a history in the nation. On one day, 2 back-to-back transplants were done, one a cadaveric and the second a live-related, and both were successful. In this context, the Department of Anatomy has received 30 donated bodies and another 144 registrations for body donation in the past 1 year. This is with great motivation and effort that they have achieved this. The PET-CT scanning facility was initiated in October 2023, and since then it has rolled and 350 cases have already been done. The Department of Community Medicine has adopted 10 villages, namely Mati, Bantra, Gauri, Natkur, Amosi, Darauga Kheda, Ambarpur, Paharpur, Bani, and Mulaiki Kheda. The programs specially include the upliftment of children and women. A total of 3,000 women have been screened for cervical cancer via liquid-based cytology or HPV DNA test. KGMU is a major referral center for TB testing, and it also supervises and monitors district labs in 36 districts. 100 TB children have been adopted. This has also been a year for promotions, both in the teaching and non-teaching cadre. 67 faculty members have been promoted, and 65 promotions have also been done in 13 non-teaching cadres as per the SGPGI scale. Recruitment of nursing officers. KGMU has recently conducted a written test in the offline mode for recruitment of nursing officers. 1291 posts were advertised, against which 64,000 applications were received. The exam was conducted in 134 centers in 5 cities on November 26. I must say that the whole university cooperated in the exam with 300 faculties going as observers to the various centers, and because of which the exam could be conducted in a seamless manner without any problem. KGMU also wants to thank the UP government for giving the police force for maintaining law and order in each one of the centers. On the eve of the convocation today, that is last night, the results have gone live. So they are now displayed on the website. KGMU, under the guidance and motivation of the Honorable Chancellor, has adopted several good practices. One such being environment, our responsibility towards a safe earth, which includes efficient biomedical waste management system by the university. Recently, an energy audit through a tripartite agreement between KGMU, Uttar Pradesh New and Renewable Energy Development Agency, and Bitcoin has been conducted. This day really belongs to all of you who are being awarded degrees, and I would like to congratulate all of you. It's a proud moment for you and your families, and a culmination of all your years of hard work, dedication, and perseverance. It also marks the start of a new journey with renewed vigor and new responsibilities, for which you have been prepared by the university. We, your teachers, look forward to your bringing laurels to the university and holding high the dignity and status of the university. I would also like to congratulate the faculty of the King George's Medical University
for their noteworthy contributions in patient care and the untiring efforts towards the teaching, training of medical and paramedical undergraduate and postgraduate students. The feeling of oneness and pride in being a Georgian is unique for KGMU. And I hope we maintain this rich tradition and strive towards taking KGMU to its next level of excellence in the year to come. I would like to express my deep gratitude to the Honorable Chancellor, who has steered the university towards attaining excellence in education standards and adopting good governance practice. I would also like to express my gratitude to the government of UP, led by our Honorable Chief Minister and Medical Education Ministers, Honorable Brijesh Pathak ji and Honorable Mayankeshwar Sharan Singh ji, for their continuous support and guidance to the university. Engineering and technology has had a major impact in the advancement of medicine and health sciences. And we could not have had a better chief guest than Professor Karandikar, who has promoted several technological advancements in country, the most important being in telecom research and technology development. Thank you for gracing the occasion as the chief guest. I also want to thank Professor Bhandari, who is not only an eminent urologist, but has taught many, including myself, about innovation in administration. I've really learned that from him. He established unique, innovative facilities like the Hospital Revolving Fund and the Investigation Revolving Fund in SGPGI for optimum distribution of drugs and for optimum investigation support to SGPGI. Thank you for being with us. Thank you. Jai Hind. आज के दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के सचिव प्रोफेसर अभय करंदीकर जी, डीएससी उपाधि से सम्मानित तथा रोबोटिक सर्जरी एवं रिसर्च विज्ञान वटीकुटी यूरोलॉजी संस्थान हेनर्सफोर्ड अस्पताल अमेरिका के निर्देशक प्रोफेसर महेंद्र भंडारी जी, विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद जी, प्रति कुलपति प्रोफेसर अभिजीत कौर जी, विभिन्न संकायों के डीन, विश्वविद्यालय सभा एवं कार्य परिषद के सभी सदस्यगण, अन्य अधिकारीगण, चिकित्सकगण एवं कर्मचारीगण, आज ये कार्यक्रम में आए हुए प्यारे बच्चे, आंगनवाड़ी की कार्यकर्त्रियों, देवी और सज्जनों, आज अवार्ड दिया गया। सबसे ज्यादा खुशी जो हो तो मुझे लगता है कि माताजियों को हुआ होगा। आपकी मम्मियों को अभिनंदन, पिताजी को भी अभिनंदन, टीचर्स को भी अभिनंदन, और पूरी यूनिवर्सिटी के सभी कर्ता हर्ता सबको अभिनंदन देती हूं मित्रों। खुशी तो ये बात की है कि सबसे ज्यादा अवार्ड कौन ले गया? महिलाएं ले गई। और ये सिलसिला अभी तक शायद मैं 25 यूनिवर्सिटियों का दीक्षांत समारोह में गई हूं, सब में 80% से ज्यादा अवार्ड बेटियां ले जाती हैं। तो इधर माताएं तो कम है, लेकिन माताओं को मैं ये कहना चाहती हूं
कि आपके बेटे को हुआ है क्या? पढ़ने के लिए तो आते हैं। 50% छात्र है, 50% छात्राएं हैं लगभग सभी यूनिवर्सिटी में। लेकिन जब रिजल्ट देखते हैं तो इसमें 80-20 का रेशियो हो जाता है। फिर तो ऐसी स्थिति होगी कि जो हमारे अध्यापक बैठे हैं, नहीं वो पुरुष कोई दिखाई नहीं पड़ेगा 15 साल के बाद। सभी बेटियां 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 ही होगी उस। मैं आज के अवसर पर पदक विजेताओं और उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। डॉक्टर की उपाधि मिलने का क्षण हर विद्यार्थी के बहुत महत्वपूर्ण और गौरवमय होता है। आज आप सबको वर्षों के परिश्रम का फल मिला है। मैं आपके अभिभावकों और माता पिता को भी बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। आज यहाँ 1227 उपाधियों को डिजी लॉकर में अपलोड किया गया है। इससे विद्यार्थियों को यह सुविधा होगी कि जब वे चाहेंगे तो अपनी उपाधि को डाउनलोड कर निकाल सकेंगे। मित्रों, अच्छा स्वास्थ्य ईश्वर की देन होती है। यह एक स्वस्थ जीवन शैली के रख रखाव द्वारा भी अर्जित किया जा सकता है। भगवान बुद्ध ने कहा था कि शरीर को अच्छे स्वास्थ्य में रखना एक कर्तव्य है, अन्यथा हम अपने दिमाग को मजबूत और स्पष्ट नहीं रख पाएंगे। अपनी दिनचर्या को नियमित करना महत्वपूर्ण है ताकि हम जीवन भर अच्छे स्वास्थ्य का आनंद उठा सकें। आज मानव अधिकार दिवस भी है। 10 दिसंबर को पूरे विश्व में मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की आज 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। भारतीय संविधान में मानव अधिकारों के कई प्रावधानों को शामिल किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक प्रत्येक नागरिक को समानता के अधिकार की गारंटी देते हैं। अनुच्छेद 19 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है और अनुच्छेद 21 जीवन एवं स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के तहत आता है। मित्रों, भारतीय संविधान में हमें अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य पालन के भी निर्देश दिए गए हैं। जैसे संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को दृश्य में हृदय में संजोए रखें और उनका सम्मान करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। मित्रों, महिलाओं का जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ना केवल देश की उन्नति के लिए ही नहीं, बल्कि समाज में उच्च नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। मेरा मानना है कि चिकित्सा पेशे में लिए जो आधारभूत गुण की आवश्यकता होती है, वह पुरुष की अपेक्षा महिलाओं में अधिक होती है और इसी गुण की वजह से चिकित्सा के क्षेत्र में महिलाएं अधिक सफल हो सकती हैं। यह संस्थान अपनी विशिष्ट चिकित्सीय सेवाओं के साथ ये प्रति वर्ष सैकड़ों कुशल एवं निपुण चिकित्सकों को भी तैयार करता है, जो कि देश की बढ़ती चिकित्सा सेवाओं में अहम भूमिका निभाते हैं। विश्वविद्यालय की वर्ष 2022 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार अब तक संस्थान द्वारा 20,000 से अधिक चिकित्सा छात्र छात्राएं चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए तैयार किए जा चुके हैं, जो भारत सहित पूरी दुनिया में अपनी उत्कृष्ट सेवाएं दे रहे हैं। कोरोना संक्रमण काल में भी चिकित्सा विश्वविद्यालय द्वारा बिना किसी भय के अपने सामाजिक एवं नैतिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए आम जनमानस की चिकित्सा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई थी। मुझे प्रसन्नता है कि किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय को
संस्थान की उत्कृष्ट चिकित्सीय व्यवस्था एवं शैक्षणिक क्रियाकलापों हेतु राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा A+ की श्रेणी प्रदान की गई है। आपको इस पर ही संतोष नहीं करना चाहिए, आपको A++ के लिए अपने प्रयास को जारी रखना चाहिए। मेरे संज्ञान में लाया गया कि चिकित्सा विश्वविद्यालय में 61 चिकित्सीय विभाग संचालित हैं, जिनके द्वारा मरीजों को समस्त चिकित्सीय सेवाएं प्रदान की जा रही। इस श्रेणी विश्वविद्यालय द्वारा 2 नए विभागों का संचालन प्रारंभ किया गया है, थेरेसिक सर्जरी विभाग तथा वैक्सुलस सर्जरी विभाग। इन नवीन विशिष्ट सेवाओं के संचालन से फेफड़े की बीमारी से ग्रसित मरीजों को विशिष्ट चिकित्सीय सुविधाएं प्राप्त हो सकेगी। इस साल भारत सहित कई देशों में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट में कई म्यूटेशनों के साथ अनेक नई बीमारियां देखी गई हैं। जुलाई सितंबर तक अमेरिका और यूके जैसे देशों में अस्पतालों में रोगियों की संख्या स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। इसी प्रकार बच्चों के टोमेटो फीवर, बच्चों में तेजी से बढ़े निमोनिया के मामले तथा श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाला ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस जैसी बीमारियां चिंता का विषय बनी हुई है। इन पर विशेष रूप से शोध करने की आवश्यकता है। मुझे बताया गया कि चिकित्सा विश्वविद्यालय में प्रथम बार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी लागू की गई है, जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालय के चिकित्सकों एवं शोधकर्ताओं के पेटेंट्स एंड राइट्स को विनियमित करते हुए इसके राजस्व को चिकित्सा विश्वविद्यालय के साथ साझा करने के विनियम को निर्धारित करता है। इस वर्ष चिकित्सा विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षण, प्रशिक्षण व शोध क्रियाओं को बढ़ाने की दृष्टि से 7 संस्थानों के साथ MOU किया है। इसके साथ ही इस वर्ष से एक प्लेसमेंट सेल का संचालन भी प्रारंभ किया है, जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों को रोजगार उपलब्ध कराना है। इस वर्ष भी चिकित्सा विश्वविद्यालय के 11 चिकित्सकों को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया USA द्वारा दुनिया भर के 2% भारतीय वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है, जो कि प्रदेश के लिए गौरव की बात है और मैं इन सभी चिकित्सकों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। यहाँ पर मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अभी 6 दिसंबर 2023 को लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में नई दिल्ली एम्स के कार्डियोथेरेसिक सेंटर के प्रमुख पद्मश्री डॉक्टर बलराम भार्गव जी आए थे, जो आपके चिकित्सा विश्वविद्यालय के छात्र रहे थे। डॉक्टर भार्गव को चिकित्सा के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने वर्ष 2018 और 2020 के बीच देश में जीका और निपाह के प्रकोप को रोकने के लिए भारत की कोशिशों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। इसी प्रकार आपके संस्थान के पूर्व कुलपति डॉक्टर रविकांत जी, जिन्हें वर्ष 2016 में पद्मश्री प्राप्त हुआ था, इन सभी की उपलब्धियों से आप सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। और आज हमारे बीच 2 ऐसे ही डॉक्टर है जिसको आपने डिग्री एनायत की है, दोनों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। तो विश्वविद्यालय द्वारा अपने सामाजिक दायित्व की पूर्ति के क्रम में गोद लिए गए 10 गांव में नियमित रूप से आउटरीच सेल के माध्यम से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही इन गांवों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य के अलावा वहां पर अन्य सामाजिक और शैक्षणिक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही आंगनवाड़ी केंद्रों को सुविधा संपन्न बनाने के लिए किट का वितरण भी आज आपने किया है। और अभी तक पूरे
यूपी में 9,000 आंगनवाड़ियों में ऐसी किट आप जैसे यूनिवर्सिटियों के द्वारा दिया गया है। सभी यूनिवर्सिटियों को मैं आज बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि आंगनवाड़ी में ऐसे बच्चे आते हैं जिसने कभी कोई कुछ देखा ही नहीं, झोपड़पट्टी के अलावा कुछ देखा ही नहीं, गंदगी के अलावा कुछ नहीं देखा है, घर में शिक्षा वाले कोई है ही नहीं, कोई पढ़ा लिखा नहीं। ऐसे बच्चों को मदद करना और ऐसे बच्चों को आगे ले जाना, ये हमारी फर्ज में आता है। और इसी वजह से ये काम विश्वविद्यालय और संबंधित कॉलेज के द्वारा हो रहा है। और आज हमारे बीच में छोटे छोटे बच्चे भी आए जो प्राइमरी स्कूल में वो पढ़ते हैं। मैंने पूछा कि आज आप कहाँ आए हो, तो इतना बोले कि विश्वविद्यालय में आए हैं। लेकिन ये विश्वविद्यालय क्या है, क्या काम कर रहा है, मैं चाहती हूं कि उनके साथ आए हैं टीचर अपनी स्कूल में जाकर ये यूनिवर्सिटी क्या काम कर रही है और आज क्या क्या हुआ, इसका पूरी स्पीच ये सभी बच्चों के सामने रखें, सभी बच्चों के सामने रखें। चिकित्सा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित रेडियो गूंज की टीम द्वारा आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय समुदाय को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी सरल तरीके से उपलब्ध कराने साथ विशेषज्ञों की बातों को भी सहज भाषा में प्रसारित किया जा रहा है, जिसके सुखद परिणाम देखने को मिलता है। स्थानीय लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है। मातृभाषा विशेषकर अवधि में कार्यक्रम के प्रसारण से ग्रामीण आबादी बड़ी संख्या में लाभान्वित हो रही है। इस कार्यक्रम से संपन्न वर्ग सहित बड़ी संख्या में आबादी स्वस्थ जीवन शैली, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के पहलुओं से प्रतिदिन अवगत हो रही है तथा अपनी दिनचर्या में स्वास्थ्य संबंधी सभी चिकित्साओं व विशेषज्ञों को सुझावों को अपना रही है। उनका विचार विमर्श और समाज को दिया गया संदेश न केवल श्रोताओं को प्रभावित करता है, बल्कि उनमें अपनेपन का एहसास भी जगाता है। मित्रों, आज के अवसर पर मैं कहना चाहूंगी कि हमारे देश की बड़ी आबादी की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए सक्षम चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ की बहुत अधिक संख्या में जरूरत है। वर्तमान समय में डॉक्टर पेशेंट और नर्स पेशेंट रेशियो राष्ट्रीय स्तर पर कम है और इसे बेहतर करने की आवश्यकता है। पिछले कुछ वर्षों में देश के सभी राज्यों में केंद्र सरकार द्वारा बहुत सारे मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाए गए हैं, जिससे लोगों को चिकित्सा की सुविधाएं उनके अपने और आसपास के क्षेत्रों में मिल रही है। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इस दिशा में कार्य कर रही है। पिछले 8-9 वर्षों में MBBS की सीटों में लगभग 9% की वृद्धि हुई है। 50,000 से बढ़कर अब इनकी संख्या करीब 1 लाख हो चुकी है। निजी सेक्टर और गैर सरकारी संस्थाएं भी स्वस्थ और विकसित देश के निर्माण में पूर्ण रूप से सहयोग दे रही है। आज हम सभी होलिस्टिक वेलनेस की बात करते हैं। मुझे खुशी है कि हमारे चिकित्सा संस्थान आज चिकित्सा की सभी श्रेणियों जैसे कि होम्योपैथ, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा से लोगों का इलाज कर रही है और उनके ओवरऑल फिटनेस को प्रमोट कर रहे हैं। मैं चाहूंगी कि यह चिकित्सा विश्वविद्यालय भी इस दिशा में कार्य करे। इसके साथ ही मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में भी चिकित्सा संस्थानों को और अधिक रिसर्च करनी चाहिए तथा अन्य संस्थानों को भी मेंटल हेल्थ एजुकेशन और इससे संबंधित ट्रीटमेंट सिस्टम सेटअप करने के लिए गाइड करना चाहिए। मित्रों, एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान हिप्पोक्रेट्स के देन माना जाता है, लेकिन आज तक एलोपैथिक चिकित्सा शरीर के कई रहस्यों तक नहीं पहुंच सकी है। सर्दी, खांसी, बुखार का जितना व्यापक वर्गीकरण भारतीय चिकित्सकों ने किया था, वहां तक विज्ञान अभी नहीं पहुंच पाया है। चरक संहिता जैसा महत्वपूर्ण आयुर्वेद ग्रंथ रचने वाले आचार्य चरक को आयुर्वेद विशेषज्ञ व त्वचा
चिकित्सक भी बताया जाता है। आचार्य चरक शरीर विज्ञान, गर्भ विज्ञान, औषधि विज्ञान के बारे में गहन खोज की है। आज के दौर की सबसे ज्यादा होने वाली डायबिटीज, हृदय रोग व क्षय रोग जैसी बीमारियों के निदान व उपचार की जानकारी वर्षों पहले ही आचार्य चरक ने उजागर कर दी थी। इस दृष्टि से हमारा आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति मानव स्वास्थ्य के लिए आज भी उपयोगी है। बस जरूरत इस बात की है कि इन पर शोध हो और इसके ज्ञान का प्रचार प्रसार किया जाए। आज हमारा देश विकासशील देश से विकसित होने की ओर मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार व राज्य सरकारें कंधे से कंधा मिलाकर विकास के पथ पर बढ़ रहे हैं। आज देश की सोच बदली है और सरकार का दृष्टिकोण भी बदला है। आज सरकारी नीतियों में आम जनमानस की सुविधा, सुरक्षा, स्वास्थ्य ही केंद्र में होते हैं और जब बात जनमानस के स्वास्थ्य की होती है तो आप सभी इन नीतियों की धुरी होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज से आप द्वारा अर्जित किए ज्ञान को वास्तविक रूप में इस्तेमाल किए जाने का समय प्रारंभ हो गया है। आप हमेशा जिज्ञासु बने रहे और जीवन में सीखने का निरंतर प्रयास करते रहे। निरंतर नए ज्ञान को अपनाएं। चिकित्सा का क्षेत्र निरंतर विकास की स्थिति में रहता है। आज आप लोग यहाँ से उपाधि प्राप्त करके स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में कदम रखने वाले हैं। आपके ऊपर देश व प्रदेशवासियों को स्वस्थ रखने की बड़ी जिम्मेदारी आई है। मुझे विश्वास है कि आप सभी अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाएंगे और इस संस्थान का नाम रोशन करेंगे। अंत में मैं एक बार पुनः मेडल एवं डिग्री प्राप्त करने वाले नव चिकित्सकों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी चिकित्सक हमारे राष्ट्र और मानवता के प्रति अनेक वर्षों तक सेवा करते रहे। धन्यवाद। जय हिंद।